We request you all who are connected to this Zoom and online to be active in the presence of the Lord. हम निवेदन करते हैं जो ऑनलाइन जूम में जुड़े हुए हैं वो आप सब जो है उपस्थित हो जाइए सामने. Just because it is at home, don't move around. And 7:30 meeting means before 7:30, you should be there seated with your Bibles and song books, with pen and pencil or notebook to write down. So घर में है करके इधर उधर मत घूमिए. 7:30 बजे मतलब 7:30 बजे से पहले अपना बाइबल सॉन्ग बुक जो भी आपका वो नोटबुक है पेन वगैरह लेके पहले से तैयार रखे बैठिए. And also we find some of you are not available for prayer meeting. तो हम देख रहे हैं कि आप में कुछ लोग प्रार्थना सभा में उपलब्ध नहीं है. Prayer meeting is as important as Bible study and worship service. जैसा बाइबल सेवा बाइबल अध्ययन आराधना सेवा कितना मुख्य है, प्रार्थना सभा भी उतना ही मुख्य है. Earlier we have to go to some place to attend. Now it is at your own home. You are sitting and seeing. So it is a wonderful opportunity. So get yourself ready and be there at 7:30 for the private Bible study and prayer meeting. तो पहले तो हम दूसरी जगह जाते थे, अब वैसे अपने ही घर में सुविधा है. सो चाहे बाइबल अध्ययन समय हो चाहे प्रार्थना सभा हो, समय पर आप अपना जो ऑनलाइन आप उपस्थित रहिए. And don't let also children not move around. और बच्चों को भी इधर उधर घूमने मत दीजिए. So let us respect the presence of the Lord and listen to the word. हम प्रभु की उपस्थिति का आदर करें और प्रभु का वचन सुनें. As we get muted when the singing is taking place, at your own place also you can keep singing as Raju helps us in singing. जब म्यूट होता है तब भी अपने अपने घर में आप जैसा भाई राजू गाते हैं आप भी अपने अपने घर में गाइए. It would be good to sing. ये अच्छा होगा आप लोग गाने से. Lord will prepare our hearts through spiritual singing. आत्मिक गाना के द्वारा प्रभु हमारे हृदयों को तैयार करेगा. Now shall we pray? प्रार्थना करें. Our loving heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, our gracious and wonder working God, हमारा अनुग्रहकारी और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, God of all grace, mercy and peace, सारे अनुग्रह करुणा शांति दाता परमेश्वर, we thank thee for thou art the true and the living God and there is none beside thee. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, आपको छोड़ करके और कोई ईश्वर नहीं है. The one who hears our prayers and answers our prayers beyond our asking or even thinking, according to the good pleasure of thy will. हमारे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और अपने समूह के अनुसार इच्छा के अनुसार अपने समय के अनुसार प्रभु हमारे सोचने मांगने से अधिक हमारी प्रार्थना सुनता है, जवाब देता है. धन्यवाद करते हैं. Thank thee for thy word which is eternally settled in heaven. हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन जो स्वर्ग में सदा काल के लिए स्थिर है. Thank thee the way thou hast been speaking unto us these days from thy holy throne to guide our footsteps in this wilderness journey. हम धन्यवाद करते हैं दिनों में किस तरीके से आप हमसे बात कर रहे हैं ताकि इस जंगल यात्रा में हमारे पद चिन्हों में अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं. All these days we thank thee for thy help to have this online meeting. Oh Lord, help us even in the future as long as we have to have like this, honor our faith and answer our prayers. अब तक इस ऑनलाइन सेवा के लिए आपने सहायता की, धन्यवाद करते हैं. भविष्य में भी जितना भी समय तक हम प्रभु ऐसा ऑनलाइन सेवा करना है, प्रभु आप हमारे सहायता करें, हमारे इस ऑनलाइन सेवा को आशीष करिए. Though we long to meet people, come together, but we are not able to do so because of the coronavirus. Lord, be gracious unto us, and very soon some remedy may be found out so that we may be able to gather together. जबकि हम दिल से चाहते हैं कि प्रभु इकट्ठा हो एक साथ प्रभु, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पा रहे. प्रभु आपकी इच्छा में जल्दी से प्रभु इस कोरोना वायरस के लिए एक रेमेडी एक इलाज हो और ताकि इस प्रकार से हम लोग इकट्ठा हो सके, आपके नाम की महिमा हो. We are burdened to have special meetings in October. We do not know whether we can have them. हमें तो बोझ है प्रभु अक्टूबर में विशेष सभा का आयोजन हो, लेकिन हमें नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा. And if we have to have even on online some special meetings where everybody is available even during the day, such dates may be given unto us in thine own plan and purpose so that we may have online special meetings in due course of time. प्रभु जी आपकी इच्छा है तो प्रभु आने दिनों में ऑनलाइन सेवा के द्वारा प्रभु विशेष सभा का आयोजन हो और आपकी इच्छा है तो प्रभु ऐसा हमें समय ऐसा दिन दिखाइए
ताकि ऑनलाइन स्पेशल मीटिंग का आयोजन कर सके। Thy coming is very close as we see things happening around us. So according to Hebrews chapter 10 verse 25, we may be able to gather together as often as we could. जैसा चिन्ह दिखाई दे रहे प्रभु, आपके आना बहुत नजदीक है। इब्रानी 10:25 के अनुसार जितना हो सके हम उतना अधिक इकट्ठा होने में हमारी सहायता करें। People of this world, they do not know, but we know for very sure that the Lord Jesus Christ, who came into this world, took the form of man, died for the sins of the whole humanity, and ascended into heaven. Same Jesus is going to come again. दुनिया के लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए आया, प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, स्वर्ग में गया, फिर वही यीशु हमारे फिर से आने वाला है। That is the greatest expectation we have as the children of the living God. जीवते परमेश्वर बच्चों के नाते हमें सबसे बड़ा ही आशा उम्मीद है। So Lord, all through these meetings, even through online, prepare all of us for the coming of the Lord Jesus Christ. और इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा भी, इन सभाओं के द्वारा भी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह की आगमन के हम सबको तैयार करें। Whatever is not of thee in our midst may be removed, and whatever is of thee may be established in our midst. जो भी आपके तरफ से नहीं है हमारे बीच में उसको निकालिए, जो भी आपके तरफ से उसकी स्थिर करे, स्थापना करे। Pray for all those who are not well in our midst. हमारे बीच में जितने भी जिनका तबीयत ठीक नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Pray for Savita, Narsaya's wife. She is running temperature, touch her and heal her. सविता के लिए प्रार्थना करते हैं, नरसय के पत्नी के लिए जो उनको बुखार है, आप उनको चुकर चंगाई दे। Pray for Hannah Persis, Prabhudas' daughter. She is also running temperature, touch her and heal her as well. भाई प्रभुदास की बेटी हैना पेरिस के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बुखार है, उनको भी चुकर चंगाई दे। And thank you for bringing back home the Lakshman Swami. Also at the same time, pray for that sister's father, who is also going to discharge very shortly and put in quarantine. Lord, watch over him as well. धन्यवाद करते हैं लक्ष्मण स्वामी को, आपने चंगाई दिया और जो डिस्चार्ज हो किया, घर आने में सहायता किया। इसी प्रकार के बहन के पिताजी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रभु जल्दी से ठीक होकर के घर में आके फिर क्वारंटाइन में सहायता करे। Thank thee in answer to the prayers. Thou hast healed Akash, who was in the hospital, as he may be discharged tomorrow or day after tomorrow after sufficient medication. O Lord, help him that he may fully recover and resume his duties. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आकाश के लिए प्रार्थना के उत्तर में आपने चंगाई दिया है। कल या परसों जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, आप सहायता करें, संपूर्ण से चंगाई दे और अपनी जिम्मेवारी ड्यूटी को करने में सहायता करें। Pray for Shanti Raju, our Jay Raju's brother, who is in Hyderabad, down with COVID-19 positive, he was tested. Lord, help that he may be healed as he is admitted in the hospital. प्रार्थना करते हैं हमारे भाई जय राजू के छोटा भाई के लिए, शांति राजू के लिए, जो हैदराबाद में उनको भी कोविड पॉजिटिव हुआ है। प्रभु आप प्रभु जी सहायता करें, उनको चंगाई दे प्रभु, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, संपूर्ण उनको चंगाई दे। Today being 16th of July, it is the 20th anniversary of Sarai Assembly. Lord, watch over the flock, watch over all the saints who are there with their families and the children. We are also grateful to thee for all those ministers who have been ministering unto them all these years. धन्यवाद करते हैं सराय मंडली के लिए भी, प्रभु आज 20वां प्रभु उनका साल गिरा है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं वहाँ के जितने भी सेवा की है उन सबके लिए, जो वर्तमान में हैं और उनके जितने परिवार है, जितने बच्चे हैं, उन सबके धन्यवाद करते हैं। आप उन सबको देख रेख करें, आशीष दे। Watch over all the saints, Lord, who are laboring in thy vineyard. Bind them by thy love and by thy power, so that they may strive together according to thy word in Philippians chapter 1 verse 27. प्रभु जी फिलिप्पी 1:27 के अनुसार प्रभु वहाँ जितने भी सेवा में हैं सब संतों को आशीष दे, एक साथ एक चित्त होकर के आपकी सेवा में आगे बढ़ने में सबको सहायता करे। Lord, watch over us as we begin the meeting. हम सभा को आरंभ करने वाले, आप हम सबको देख रेख करें। Thank thee for the home call of Sister Vijay, wife of Sylvester in Madras on 13th. Lord, comfort the whole family. Lord, thank thee for her sincere services in thy vineyard. She had been a source of great encouragement for her husband. Lord, watch over the family and comfort all the members of the family. प्रार्थना करते हैं मद्रास में भाई विजय की पत्नी के लिए, सैलवेस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपने घर आपने बुलाया उनको, प्रभु जितने भी उन्होंने सेवा की है उन सबके धन्यवाद करते हैं। उनके सब घर वालों को सबको आप शांति में, संतावना में बना के रखे। Sister Vijay is the wife of Sylvester. भाई सेल्वेस्टर की पत्नी बहन विजय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। And she is called to glory on 13th, so comfort the family. 13 तारीख को प्रभु अपने घर में आपने बुलाया, प्रभु अपने पास, प्रभु आपके सब घर के सदस्यों को आप संतावना दे।
Thank thee for the 10th class results that have been announced. Thank thee for the good, Lord, results that was given to John, Steve, Jonah, Caleb, Malini, and Christina. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आया है प्रभु, जॉन को, स्टीव को, कालेब को, जोना को, मालिनी को और क्रिस्टीना को भी आपने अच्छा पास करवाया, धन्यवाद करते हैं। Lord, watch over the children and they may get the choice subject in the 11th class. प्रभु जी बच्चों को देख रेख करें और 11वीं में प्रभु जो भी उनको चॉइस है उनके सब्जेक्ट उसमें एडमिशन मिलने में सहायता करें। Pray for Joda. Yesterday it was his birthday. Oh Lord, thank thee for all these years. Thou sustained him, enabled him to enter into New Year yesterday. Lord, watch over him in his studies. Help him to read thy word and also do thy will so that he may prosper and successful. धन्यवाद करते जोड़ा के लिए भी, कल प्रभु उनका बर्थडे था प्रभु, आपने इतने सालों से आपने उनको संभाला, सुरक्षित रखा, धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी उनको देख रेख करें, उनके पढ़ाई में सब बातों में आशीष दे, सहायता करें। Also Prabhudas' birthday was yesterday. Thank thee for all these 53 years. Thou sustained him, helped him to follow thee and serve thee, take care of the family. O Lord, bless him abundantly and continue to use him for thy glory. हम धन्यवाद करते हैं, प्रभुदास का भी कल बर्थडे था प्रभु, 53 ईयर्स आपने उनको संभाला, सहायता किया, लगातार आपके पीछे चलने में, आपकी सेवा करने में उनको सहायता करें। So Lord, be with Joda and Johan as they recite verses, and also Hannah and Joy as they sing songs, and Lord, bless them and use them. और जोड़ा और जोहान प्रभु वचन सुनाएंगे और इसी प्रकार से हैना, अदस्सा और जॉय जसिंता प्रभु जी गीत गाएंगे, उनको भी सहायता करें, आशीष दे प्रभु, सहायता करें। Lord, watch over us and there may not be interruption in communicating thy word of grace. प्रभु हम सबको देख रेख करें, आपका वचन, अनुग्रह का वचन को पहुंचाने में किसी प्रकार से रुकावट ना हो। We are unworthy servants, so request thee, sanctify us by thy blood and use us as seemeth good in thy sight. हम तो अयोग्य दास है, आपसे निवेदन है प्रभु, आपके लहू से हमें पवित्र करे, जैसे आपकी दृष्टि में अच्छा समस्या में इस्तेमाल करे। Without thee we can do nothing. आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। So Lord, we depend upon thee, help us. प्रभु जी हम आपके ऊपर आधारित है, आप हमारी सहायता करें। Thank thee for all those who are praying for us around the world. Answer all our prayers beyond our asking or even thinking. हम धन्यवाद करते पूरी दुनिया में आपके लोग जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबकी प्रार्थना हमारे सोचने मांगने सदी को आप उत्तर दे। Our singing, our meditation, spending time in thy presence may bring glory to thy name and edification unto us. प्रभु जी हमारा गीत गाना, वचन को मनन करना, आपको उपस्थिति में समय बिताना, हम सब के लिए आपकी महिमा के लिए, हमारी उन्नति के लिए हो। Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. धन्यवाद साहब प्रार्थना आते हैं प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से, Amen. आमीन। Now Raju will help us in singing song number 57, Malik Sirjanhare. मालिक सिरजनहारे, याद हम तुझको करते, तेरी प्रशंसा सब गाते। मालिक स्वर्ग में महिमा, ऊंचाई में स्तुति, स्वर्ग में महिमा, ऊंचाई में स्तुति, सारी सेनाओं दूतों प्रतापी, स्वर्ग में महिमा, ऊंचाई में स्तुति, सारी सेनाओं दूतों प्रतापी, सूरज चांद और तारा असंख्य, सूरज चांद और तारा असंख्य, विश्राम बिना वंदन गाते। मालिक सिरजनहारे, याद हम तुझको करते, तेरी प्रशंसा सब गाते। मालिक धीमे धीमे ओ प्रभु तू बरसाए, धीमे धीमे ओ प्रभु तू बरसाए, आंधी तूफान तू वेग से चलाए, धीमे धीमे वो प्रभु तू बरसाए, आंधी तूफान तू वेग से चलाए, पृथ्वी कांपे जब वो
भूतल आए, पृथ्वी कांपे जब भूचल आए, तेरी शक्ति की महिमा कराते, मालिक तेरे जनहारे याद हम तुझको करते, तेरी प्रशंसा सब गाते, मालिक सागर गरजे और लहरें उठाए, सागर गरजे और लहरें उठाए, नदी नाले सब वेग से बह जाए, सागर गरजे और लहरें उठाए, नदी नाले सब वेग से बह जाए, जंगल झरना मरुभूमि, पर्वत जंगल झरना मरुभूमि, तो है ईश्वर ये सब बताते, मालिक सिरजनहारे याद हम तुझको करते, तेरी प्रशंसा सब गाते, मालिक जंगल जाति कार्य सब, राजा प्रजा आदि कार्य सब, जवान प्रोजित वृद्ध सब, राजा प्रजा अधिकारी सब, जवान प्रोजित वृद्ध सब, गौरव तेरा हो महिमा तेरी हो, गौरव तेरा हो महिमा तेरी हो, आता वो दिन जब सब कहेंगे, मालिक तेरे जनहारे याद हम तुझको करते, तेरी प्रशंसा सब गाते, मालिक। Shall we sing song number 66, 66? संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया चरण का है हमारा, वैसे ही तेरी साया चरण का है हमारा, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, वायदा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे, वायदा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे, चाहे रूप
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है या पार, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है या पार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई तू कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। We shall sing song number 127. Afterwards, after the song, Judah and Johan will recite verses. बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होसाना जय प्रभु आता है। कैसे खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय 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 हम बदल जाएंगे, ये तो बेबारा है। हम बदल जाएंगे, ये तो बेबारा है। बिजली तुरी फूंकते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। बिजली तुरी फूंकते ही होगा, हम उठाए जाएंगे। प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होसाना जय प्रभु आता है। कैसे खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय 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 उसके समान होंगे हम जो संतान हैं, उसके समान होंगे हम जो संतान हैं। प्रभु के प्रगट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे। प्रभु के प्रगट होने से हम
सब अविनाशी पहनेंगे, प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसे खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु को देखेंगे, ये है आशा सारी, प्रभु को देखेंगे ये है आशा सारी। आज मिटेगी तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे, आज मिटेगी तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे, प्यारे प्रभु को चखेंगे हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु को चखेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु के साथ रहेंगे, ये थी योजना उसकी, प्रभु के साथ रहेंगे ये थी योजना उसकी, प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे, प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे, प्यारा प्रभु हमारा है हम तो उसके हैं, प्यारा प्रभु हमारा है हम तो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। Now children, Johan and Judah will recite verses. First Judah will recite, then Johan. अब जोड़ा जो है वचन सुनाएंगे, इसके बाद जोहान। Praise the Lord. Nehemiah chapter 1. The words of Nehemiah the son of Hakaliah. And it came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that were left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The walls of Jerusalem also are broken down, the gates thereof are burnt with fire. And it came to pass, as I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days, and fasted and prayed before the God of heaven. And said I, beseech thee, O Lord God, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy with them that love him and observe his commandments. Let thine ears now be attentive, and thine eyes open to the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept thy commandments, nor have kept nor thy statutes, nor thy judgments, which thou commandest thy servant Moses. Remember, I beseech thee, the words which thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among nations. But if ye turn unto me, and keep my commandments, and do them, though there were a few cast out into the uttermost part of heaven, yet will I gather them from thence, and will set them into the place that I have chosen to set my name there. O Lord, these are thy servant and thy people, whom thou redeemest from thy great power, and by thy great hand, strong hand. O Lord, I beseech thee, let now thine ears be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants,
who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant, this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. Praise the Lord. Johan. Praise Lord, Uncle. I am going to say Psalm 119, verse 1 to 40. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Then shall I not be ashamed when I have respect unto thy commandments. I will keep I'll praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgments. I will keep thy statutes. O forsake me not utterly. Wherewithal shall a young man cleanse his ways? By taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I shouted thee. O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. With my lips, blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. With my lips have I declared all the judgments of my mouth. I have rejoiced in the way of thy testimonies. As much as all riches, I'll meditate in thy precepts and have respect to thy ways. I will meditate in thy precepts and have respect to thy ways. I will delight myself in thy statutes and have respect. I will not forget thy word. Deal bountiful with thy servant, that I may live and seek thy word. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. I am a stranger in the earth, O Lord, hide not thy commandments from me. My soul breaketh for longing, that is unto thy judgments at all times. Thou hast rebuked the proud that is bruised, and that do err from thy commandments. Remove from me reproach and contempt, for I have kept thy testimonies. Princes did also sit and speak against me, but thy servant did meditate in thy statutes. Thy testimonies are also my delight and my counselors. My soul cleaveth into the dust. Quicken thou me in thy right, according to thy word. I have respect unto thy I have declared my ways, and thou heardest me. Teach me thy statutes. I make me to understand the way of thy precept. So shall I talk of my wondrous works. My soul melteth for heaviness. Strengtheneth thou me according to thy word. Remove from me the way of lying, and grant me thy law graciously. I have chosen the way of truth. Thy judgments have I laid before me. I have stuck unto thy testimonies. O Lord, put me not into shame. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Teach me, O Lord, the way of thy precepts, so shall I keep unto the end. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yeah, I shall observe it with my whole heart.
Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Incline my heart unto thy testimonies, and not to conventions. Turn away mine eyes from beholding vanity, and quicken me in thy way. Establish thy word unto thy servant who is devoted to thy fear. Turn away mine reproach which I fear, for thy judgments are good. Behold, I have looked after thy precepts. Quicken thou me in thy righteousness. Thank you. Praise the Lord. Now Hannah Hadassah will play violin and Joy will sing with her. Hum Pratik Hai. Praise the Lord, everyone. Song 110 in the small book, Hum Patik Hai, first and last stanzas. Praise the Lord. Praise the Lord. Shall we pray? प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमेश्वर के पिताजी,
our gracious and wonder working God. हमारा अनुग्रहकारी और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, We thank thee for Joda and Johan who could recite verses, and also Hannah Hadassah and Joy could sing a wonderful song and play the instrument. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जोड़ा और जौहान ने वचन सुनाया प्रभु, और हैना अदस्सा और जॉय ने गीत गाया प्रभु, अद्भुत गीत। धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। Thank thee for the gifts thou hast given unto the children. धन्यवाद करते हैं बच्चों को जो आपने जो वरदान दिया। These gifts that thou hast given unto them may continue to be harnessed, exploited, utilized for the extension and expansion of thy glorious kingdom in the days to come. Prepare them now on. प्रभु जी, इन गीतों के द्वारा इन बच्चों को प्रभु जी आने वाले दोनों दिनों में और अधिकार से आपकी सेवा में विस्तार होने में बहुत से इनको इस्तेमाल करें। As they grow, they may grow to be thy children. जब वो बच्चे बड़े होंगे वो आपके बच्चे बने। Watch over them. उनको देख रेख करें। Cover them under thy wings, surround them by thy sure mercies. प्रभु जी, आपके पंखों के तले में रख के निश्चय करुणा उनको दिखाएं। Keep them in very good health and strength. प्रभु बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, शक्ति बल दे। Help them to be obedient to their parents. अपने माता पिता का बच्चे प्रभु आदर करने के लिए, इज्जत करने के लिए सहायता करें। And parents may be given heavenly wisdom to take care of them and provide spiritual atmosphere right from this age. प्रभु जी, माता पिता को भी सहायता करे, अच्छा आत्मिक वातावरण दे सके। इस उम्र से ही प्रभु उनको बच्चों को आप आशीष दे, So that in the days to come they may become signs and wonders in the midst of thy people. ताकि आने वाले दिनों में बच्चे आपके भी लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार बने। Thank thee for helping us in this online ministry. धन्यवाद करते हैं, इस ऑनलाइन सेवकाई में आप हमारी सहायता कर रहे हैं। Whoever is connected to this Zoom and also YouTube, oh Lord, help them with great reverence and respect. They may be seated in thy presence and look into thy word as the word is going to be expounded unto them. जो भी जूम से यूट्यूब से जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबको प्रभु जी आप बैठे रहे और आपके वचन को जब प्रभु हम आपके वचन को जब देते हैं प्रभु, आप बाइबल अध्ययन करते हैं प्रभु, वहां तक उन लोगों तक पहुंचाने में उनको सहायता करें। Let thy word be ministered unto us and we may be satisfied by the fatness of thy house. आपके वचन के प्रभु हमारे सेवकाई किया जाए, आपके घर के चिकने पदार्थ हम संतुष्ट हो सके, and we may profitably utilize this time available to us. जो भी समय हमारे उपलब्ध है, इस समय को हम लाभदायक इस्तेमाल करने में हमारी सहायता करें। We confess before thee we are unworthy servants, so we request thee, sanctify us by thy blood and use us as seemeth good in thy sight. हम आपके सामने मान लेते हैं, हम तो अयोग्य दास से प्रभु, आपके पवित्र लहू से हमें पवित्र करे और आपकी दृष्टि में जैसा अच्छा समझते हम इस्तेमाल करें। Let thy grace triumph over all human frailties. आपके अनुग्रह से सब मनुष्य की कमजोरी पर जीवंत हो सके। We are conscious of the prayers of the saints for us all over the world. पूरे दुनिया में आपके संत लोगों जो प्रार्थना का हमें एहसास है, Answer all our prayers. हम सबका प्रार्थना को उत्तर दे। We bind the powers of darkness in thy mighty name, अंधकार शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से हम बांध देते हैं and we bring ourselves under thy sprinkling blood and pray with thanksgiving in the precious and sweet name of our Lord and our Savior Jesus Christ. और अपने आप को आपके लहू के छिड़काव के नीचे लाते हुए धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना लाते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और बहुमूल्य नाम से, आमीन। Amen. We shall look into the word of God in 2 Corinthians दूसरा chapter कुरिन्थियों 12 में verses 9 and 10. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 9 और 10 पद देखेंगे प्रभु के वचन में से। 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 10. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 9 और 10, రెండో కొరింథీ 12 అధ్యాయం 9 10। And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गमन करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में
और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। Our Lord Himself may speak to us through the words that we have read. जो वचन भाग हमने पढ़ा है, हमारे प्रभु खुद हमसे बात करे। This is the words which comforted many all over the world. ये जो वचन है पूरे दुनिया में बहुत से लोगों को शांति दिया। My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। So as we said last time, जैसा हमने पिछले grace बार of बताया, God grace means love plus mercy multiplied by eternity. प्रेम और उसको करुणा जोड़ करके और उसका अनंत काल से गुणा करे, वो है अनुग्रह। That grace is sufficient unto us. वो अनुग्रह हमारे लिए काफी है। So it is a wonderful experience when you experience His grace in our life. जब हम प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में अनुभव करते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में अनुभव करना। His grace operates through us through the power of the living God. जीते परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उसका अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। He manifests His grace through His power. अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट करता है। Even while we pass through trials, as in case of Job, जैसा अय्यूब दुखों से गुजरा, ऐसा जब हम दुखों से गुजरते हैं, even as we pass through temptations, as that of Joseph in Potiphar's house, जब यूसुफ जो है पोतीफर घर में परीक्षा से गुजरा, जब हम भी ऐसी परीक्षा से गुजरते हैं, it is by grace through the power of God they are sustained. केवल प्रभु के अनुग्रह से, उसकी सामर्थ से हम लोग संभाले जाते हैं। So in every situation, His grace is available to us. हर परिस्थिति में प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। Without grace, we cannot sustain. We cannot continue as believers of the Lord. बिना अनुग्रह के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रभु के विश्वासी के नाते हम आगे नहीं बढ़ सकते। The grace is multifarious. सो ये नाना प्रकार का, कई प्रकार का है अनुग्रह। See, 1 Peter पहला पत्रस chapter 4, 4 अध्याय verse 10. 10 पद। As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 10 पद। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के बड़े भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। So we are the good stewards of the manifold grace of God. सो प्रभु का नाना प्रकार का अनुग्रह के हम अच्छे भंडारी हैं। Multifold. That means there are various varieties of grace that is available to us. नाना प्रकार का अनुग्रह मतलब कई प्रकार के अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। Grace for different situations that we confront in this world as we go through our life. जब इस जीवन में हम चलते हैं, इस संसार में कई परिस्थिति हम सामना करते हैं, सो भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न अनुग्रह प्रभु हमारे लिए दिखाता है। Firstly, सबसे पहले it is the saving grace that is available to a sinner. एक पापी के लिए उद्धार देने का अनुग्रह। We find in Ephesians chapter 2 verse 8, एफएसी 2:8 में देखते हैं, you are saved by grace through faith. हम उसके अनुग्रह से विश्वास से उद्धार पाए। Many times we have shared कई बार हमने बताया that grace on his part and faith on our part come together produces salvation. सो परमेश्वर के तरफ से अनुग्रह हमारे पक्ष में विश्वास जब रखते हैं तब हम उद्धार पाते हैं। So the saving grace is available to the entire human race in this world. तो ये जो बचाने का या उद्धार देने का जो अनुग्रह है पूरे मनुष्य जाति के लिए पूरे दुनिया में है। Who can enjoy and experience and express this saving grace? लेकिन इस उद्धार देने का अनुग्रह को कौन अनुभव कर सकता है, कौन उसका वर्णन कर सकता है? Those who believe on him, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, those who are convicted that they are sinners and come to him with penitent heart and confess their sins before the Lord. जो कायल होते हैं और वो मान लेते हैं पापी हैं और पश्चाताप के साथ आंसू के साथ जो प्रभु के पास आते हैं, उनको ये अनुग्रह काम करता है। Such people enjoy this saving grace. ऐसे लोग जो उद्धार देने वाला अनुग्रह का अनुभव करेंगे। Many in the Christendom, all over the world, some of them they do not understand this. कई मसीहत में भी कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। Long time ago,
काफी समय पहले in one of the Gospels meeting in Anantapur when I was there. जब मैं अनंतपुर में था सुसमाचार सभा में, God servant, every Sunday we have gospel meeting. So he used to give the gospel on every Sunday evening. हर इतवार शाम को सुसमाचार होता था। सुसमाचार सेवा में प्रभु का दास वचन देते थे। There used to be mixed multitude in the congregation. मंडली में मिला जुला भीड़ होता था। There are many who are saved. कई लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, There are some who are saved and backslidden. कुछ लोग उद्धार पाए, बपतिस्मा भी लिया, And those who like singing, so they are there in the presence of the Lord. और कुछ लोग जो गीत पसंद करते हैं इसलिए प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं। And some are there because they think they get blessing when they go to the church. कुछ लोग सोचते हैं चर्च में जाने से हमें आशीष मिलता है इसलिए जाते हैं। So that would mean some have got the wonderful gift of salvation because they confess their sins, but there are many who are not saved, but yet they are in the house of God. कुछ लोग जो है प्रभु का अद्भुत वरदान उद्धार को पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उद्धार नहीं पाते, लेकिन प्रभु घर में आके बैठते हैं। One such day after the meeting was over, I was just walking back to my room, and so from elderly brethren, they were walking in front of me. तो एक दिन जो है मैं उस सभा के बाद मैं अपने घर जा रहा था, कुछ बुजुर्ग भाई लोग आगे जा रहे हैं। They were talking among themselves like this. आपस में ये लोग बात कर रहे थे, What is this? These people are always talking about salvation, but we are all saved when Christ came onto the cross. ये कहते हैं बार बार उद्धार के बारे में बात करते हैं, जब मसीह क्रूस पर आया तो हम सब उद्धार पा लिया, ऐसा बात कर रहे थे। And he has saved us, the whole world, when he said, forgive them, for they know not what they do. वो लोग क्या करते हैं इनको नहीं मालूम, को क्षमा कर जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, पूरी दुनिया को उन्होंने क्षमा कर दिया, ऐसा बात कर रहे। Yeah, when Lord said, forgive them, for they know not what they do, on the cross of Calvary, according to them, the whole world is saved. जब प्रभु ने ऐसा कहा, प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम, को क्षमा करो, सो वो लोग सोच रहे हैं, जो बातें कर रहे थे, कि पूरे दुनिया के लोग उद्धार पा लिया। This misunderstanding is in vogue many parts of the world. ये जो गलतफहमी है पूरे दुनिया में कई जगह में है। That is why when we preach the gospel, they make fun of it. इसीलिए जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, उसको मजाक करते हैं लोग। Hey, what is these people are always talking about salvation? ये लोग हमेशा उद्धार के बारे में बात करते हैं। If you are born in a Christian family, you are not a Christian. अगर आप मसीह परिवार में जन्म लिया, आप मसीह नहीं है। If you are born in a Christian family, you are not saved because of your birth in a Christian family. आपने एक मसीह परिवार में जन्म लिया, इसलिए ये नहीं कि आप उद्धार पा लिया। I was born in a Christian family, but I was not saved. मैं भी एक मसीह परिवार में जन्म हुआ मेरा, लेकिन मैं उद्धार नहीं पाया। But there was a time when a God servant told me the gospel. I believed God's word, and I was convicted of my sinful life, and I confessed my sins before the Lord. Thus I was saved. जब प्रभु का दास ने वचन दिया, तब मैंने उस पर विश्वास किया, तब मैंने पश्चाताप किया, अब प्रभु पर भरोसा किया, विश्वास किया, तब मेरा उद्धार हुआ। So the saving grace is available to all those who believe on Him, and also with penitent heart they come to His presence and cry unto Him, saying, Lord, I am a sinner, forgive me. सो ये जो अनुग्रह, जो उद्धार देने का अनुग्रह है, जो विश्वास करते हैं और आंसू के साथ आते हैं, पश्चाताप के साथ आते हैं, प्रभु मुझे बचाओ, तब प्रभु उनको उद्धार देता है। So for such people, there would be a time, there would be a day when they have confessed their sins before the Lord, where they enjoyed the saving grace, and thus they were inducted into the family of God. तो उनके लिए एक दिन, एक समय निश्चय होता है, जिस दिन उन्होंने अपने पश्चाताप किया हो, प्रभु को उद्धारकर्ता को ग्रहण किया और परमेश्वर के घराने में आगे हैं। Christian traditions, Christian practices does not make you a Christian. तो मसीह रीति रिवाज, मसीह संप्रदाय से आप मसीह नहीं बन सकते। Once I and G.P. Rao were traveling by a train from Detroit to Chicago. एक बार मैं और G.P. राव डिट्रॉइट से चिकागो हम यात्रा कर रहे थे रेलगाड़ी से। As the train started, जैसे रेलगाड़ी शुरू हुआ, there in the train there was a wonderful atmosphere, so we started distributing tracts. वहां पर रेल में अच्छा वातावरण था, हमने पत्रियों को बांटा। We, both G.P. Rao and me. मैं और भाई G.P. राव ने पत्री बांटा। There was a hefty black American and a hefty, white American. They were sitting together. एक ब्लैक अमेरिकन, एक व्हाइट अमेरिकन जो है बहुत इकट्ठे थे, वो लोग बैठे हुए हैं। So I gave one tract. मैंने एक पत्र उनको दिया।
And that black American said, I Christian, I Christian. हाँ, वो ब्लैक अमेरिकन ने कहा मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। I don't need this. I am a Christian. हाँ, मैं तो मसीह हूँ, मुझे इस पत्र की जरूरत नहीं है। And then as he was saying, he was putting his hand inside his shirt and trying to take out something. ऐसा बोलते बोलते अपने कमीज के अंदर हाथ डाला कुछ निकालने के लिए। And then as he was doing it, he was saying, God is not helping me. ऐसा करते करते कहता है परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहे। And then finally he struggled and take out something that is the cross. आखिरी बड़े मुश्किल से उसने निकाला, वो क्रूस था। He was hanging cross around his neck. वो अपने गले में क्रूस को लटका रहा है। And he was showing me as a sign of his being Christian. और वो दिखा रहे मुझे ये तो मैं मसीह होने का चिन्ह है। So he says, I am a Christian by having that cross. कहता है मैं क्रूस रखता हूँ, इसका मतलब मैं मसीह हूँ। So that way you are not a Christian. तो ऐसा आप मसीह नहीं बन सकते। You have to be born again. आपका नया जन्म होना आवश्यक है। That is what we preach. That is the gospel of the Lord Jesus Christ. तो ये हम प्रचार करते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. John's Gospel 3:16. तो यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। Whosoever believeth on him, जो कोई उस पर विश्वास करता है, whosoever believeth on him. जो कोई उस पर विश्वास करता है। This is the biblical truth. It is not our words. ये हमारे शब्द नहीं है, ये प्रभु का बाइबल का सच्चाई है। So people ought to accept the word of God as it is and come in obedience to the word of God, confess their sins and be forgiven by him, because he will not cast out anyone who comes to him, according to John's Gospel 6:37. तो यूहन्ना 6:37 के अनुसार जो भी प्रभु के पास आता है उनको नहीं निकालता है, इसलिए जो भी बाइबल में लिखा है जैसा है वैसे उसको मानना है, उसकी आज्ञा मानना है। So saving grace pertains to those who can enjoy that saving grace, who have confessed their sins. जो भी पाप अपने मान लेते हैं वो लोग इस अनुग्रह का, जो उद्धारजनक अनुग्रह का अनुभव करेंगे। Who come to him with penitent heart. जो पश्चाताप हृदय से प्रभु के पास आते, ये प्रभु मुझे क्षमा करो। To those Lord is saying, my daughter, my son, thy sins are forgiven thee. सो उनसे प्रभु कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए। That is how, with penitent heart, when we come to him, we are saved, and thus we enjoy saving grace. सो जैसे पश्चाताप हृदय से जब प्रभु के पास आते हैं, उसका जो अनुग्रह है, जो उद्धार देने का, उसका अनुभव करेंगे। When Peter gave the gospel, जब पतरस ने सुसमाचार दिया, many people were there. They were convicted of their sins. बहुत से लोग वहां पर थे और उनके पापों से वो लोग कायल हुए। See the Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम chapter 2, verse 37. 2:37। Now, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? अपोस्तल कार्य 2:37, प्रेरितों का काम 2:37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? The gospel pricks our hearts. सुसमाचार हमारा हृदय छेदता है। The word of God pricks our hearts. प्रभु का वचन हमारे हृदय को छेदता है। There are two things happen when we hear the word of God. जब प्रभु को सुनते हैं दो बातें होते हैं, Either your heart is pricked, या तो आपका हृदय छिद जाए, or you cut to your heart. Let us see Acts of the Apostles, chapter 5, verse 33. आज का See the response they have when they got the word of God. जब प्रभु को वचन मिला उनको, उनका प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं यहाँ पर। When they heard that they were cut to the heart and took counsel to slay them. तो हिंदी में लिखा है, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। So there could be two attitudes. सो दो प्रकार के दृष्टिकोण होंगे। When the word of God is given to us, either we are pricked in our heart or we are cut to our heart, जल गए। या तो प्रभु का वचन जब आता है हमारे पास, हृदय छिद जाता है या हमारा हृदय जल जाता है। And see Acts of the Apostles, प्रेरितों का काम chapter 7, verse 54. 7:54।
When they heard these things, they were cut to the heart and they gnashed on him with their teeth. यहाँ पर भी लिखा है ये 7:54, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। See, these two attitudes could be there when you hear the word of God. या प्रभु को सुनते हैं, ये दो प्रकार की बातें होंगे। Some do not like what we preach, कुछ बार जो हम प्रचार करते हैं वो पसंद करेंगे, and some are with implicit faith, they believe on the word of God. कुछ लोग बहुत साधारण विश्वास से प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे। When those people, when they are convicted of their sinful life, when they cried and said, "Men and brethren, what shall we do?" Then Peter said, "Repent and be baptized." जब ये लोग हृदय चित गए, अब उन्होंने पश्चाताप किया, अब उन्होंने कहा ये भाइयों हम क्या करें, तब पतरस ने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो। So that is how a lot of people were saved, around 3,000 people saved on that day. इस प्रकार से वहां पर करीब लगभग 3,000 लोग उद्धार पाए। So once Brother Baksing was giving the gospel message एक बार भाई भक्त सिंह सुसमाचार संदेश दे रहे थे many years ago. काफी साल पहले। At the end of the meeting, one gentleman came to him, a very hefty Punjabi. एक बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति, पंजाबी का व्यक्ति, आखिरी में एक व्यक्ति आया। It happened in some place in Punjab. पंजाब में कहीं एक जगह हुआ था। At the end of the meeting, that man comes and argues with Brother Baksing. सभा के अंत में वो व्यक्ति आता है, भाई भक्त सिंह से वाद विवाद करता है। How come you talked about me today? ये कैसे है कि आप मेरे बारे में कैसे बात की आपने? Everything that you told pertains to me. How did you know? जो कुछ आपने बोला सब कुछ मेरे बारे में बताया, आप कैसे मालूम है आपको? Who told you about me? मेरे बारे में आपको किसने बोला? Why did you preach against me? मेरे विरोध में क्यों प्रचार किया? So that is how that gentleman came and fought with him. वो व्यक्ति आकर के भाई भक्त सिंह से लड़ा। Whereas Brother Baksing never met him. जबकि भाई भक्त सिंह ने उससे पहले कभी देखा नहीं, उनको मुलाकात नहीं किया। You know what is the thing here happened? यहाँ पर क्या हुआ? Sin is universal. पाप जो है विश्वव्यापी है पूरे दुनिया में। So also the word of God, the gospel of the Lord Jesus Christ is also universal. इसी प्रकार से परमेश्वर का सुसमाचार भी विश्वव्यापी है। It can touch these things of the heart of anybody in the world. दुनिया में किसी भी मनुष्य का हृदय को छू सकता है। Yeah, when the Spirit of God penetrates into their heart, when they are willing to hear the word of God. जब प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके हृदय में काम करता है। When you wanted to be benefited and be blessed by the word of God, जब प्रभु वचन से लाभ उठाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, then you take that counsel through the word of God. तब उस प्रभु वचन के द्वारा उस सलाह को आप लेंगे। If there is any element of pride in you, अगर आपके अंदर को थोड़ा सा भी घमंड है, then pride prevents instruction. We understand from the word of God. प्रभु को वचन से हम देखते हैं, वचन से देखते हैं कि जो घमंड जो है हमें वचन लेने से रोकता है। Vachana, any instruction, any counsel. कोई सलाह या किसी का सुझाव को लेने से रोकता है। When there is pride, that prevents instruction. क्योंकि घमंड जो है वो चेतावनी लेने से रोकता है। See John's Gospel, यूहन्ना सुसमाचार chapter 9, 9 अध्याय verse 31. और 31 पद। Here is a man, that blind man who was healed by the Lord by His grace. यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये अंधा था, प्रभु के अनुग्रह से उसने दृष्टि पाया। And Jews were pestering him. और ये जो यहूदी लोग उससे पूछताछ कर रहे। In that context, this was blind man who was healed, who got the sight back, he was saying like this. ये व्यक्ति जो अंधा था, जिसने दृष्टि पाया, वो ये बातें कह रहे। See verse 31. 31 पद। Now we know that God heareth and heareth not sinners, but if any man be a worshipper of our God, doeth his will, him he heareth. 31 पद, यूहन्ना 9:31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो उसकी सुनता। It is a wonderful truth he conveyed. तो बड़े अद्भुत सच्चाई उसने बताया। Now see their response in verse 34. 34 पद में उनकी प्रतिक्रिया देखें। They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out. 34 पद, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। तू हमें क्या सिखाता है? That is an element of pride there. एक घमंड से वो बोल रहे।
कि तू हमें क्या सिखाता है। So that there are so many other verses we can see how if there is pride that will prevent taking any counsel from others. ऐसे कई वचन हम देख सकते हैं, जब घमंड होता है हम दूसरों का सुझाव या चेतावनी को नहीं लेते हैं। So in order to enjoy the grace of God, we need to be humble before the Lord. तो हमें प्रभु का अनुग्रह का अनुभव करने के लिए प्रभु के सामने में दीन होना जरूरी है। Many times I have said in our fellowship, हमारे संगति में कई बार मैंने बताया, when the river of grace flows down the hill and it goes into the various places, when this river of grace comes to a mountain, it will look at the mountain and say, I am sorry, sir, I cannot climb up. So it will go down. जब वो अनुग्रह का जो नदी जो है पहाड़ों से जब चलता 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 है, जब बीच में कहीं पहाड़ आता है, कहता है साहब मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ, करके नीचे नीचे वो निकल जाएगा। So that is what it is. ये ऐसा ही है। You have to humble ourselves to receive the blessings of the Lord. आपको प्रभु का आशीष पाना है तो अपने आप को दीन बनाना। In order to enjoy the grace of God, you should be humble enough, meek enough, and come to such level, spiritual level, whereby you could be the receptor of the grace of God. अगर आप प्रभु का अनुग्रह का अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, आपको दीन बनना है, नम्र बनना है, तभी प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करेंगे। The first one is saving grace. तो सबसे पहले हमने देखा अनुग्रह जो हमें उद्धार देता है। We are seeing, according to 1 Peter chapter 4 verse 10, it is the manifold grace of God. हम देख रहे हैं पहला पत्र 4:10 के अनुसार ये नाना प्रकार का अनुग्रह है। The first thing is saving grace. सो पहली बात हमने देखा उद्धार देने वाला अनुग्रह। And the second thing is दूसरा है sustaining grace. हमें जीवित रखने वाला अनुग्रह। The grace of God sustains us in this world as you walk in the ways of the Lord. जब हम प्रभु के मार्गों में चलते हैं, प्रभु का अनुग्रह हमें जीवित रखता, संभालता है। 2 Corinthians chapter 12 verse 9. दूसरा कुरिन्ती 12:9। And he said unto me, my grace is sufficient for thee. और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। Paul is an apostle. पौल जो है एक प्रेरित है, He was chosen of God. वो परमेश्वर से चुना गया। He was earmarked for a great responsibility to preach the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के ये महिमा सुसमाचार प्रचार करने के लिए बड़े जिम्मेवारी के लिए उसको चुना गया। Many souls were saved through his ministry. उसके सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाए। Word of God multiplied and increased through his ministry. उनके सेवकाई के द्वारा प्रभु का वचन फैलता गया, बढ़ता गया। Churches were established through his ministry. उनके सेवकाई के द्वारा कई कलीसिया की स्थापना हुआ। And who was prepared to sacrifice his very life for the cause of Christ. मसीह के कारण अपना प्राण जोखिम में डालने के लिए बलिदान करने के तैयार हो गया। Such a man prayed unto the Lord. ऐसा व्यक्ति ने प्रभु से प्रार्थना की। See verse 7. 7 पर देखें। 2 Corinthians chapter 12 verse 7. दूसरा कुरिन्ती 12:7। And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. दूसरा कुरिन्ती 12:7 पद। इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अतः शैतान का ये दूत कि मुझे गूल से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। Every one of us has got a thorn in our flesh. तो हमें से हर एक का भी हमारे शरीर में एक कांटा है। What is the purpose? उद्देश्य क्या है? Lest I should be exalted above measure. मैं फूल ना जाऊं या घमंड ना करूं। Yeah, there is a very easy tendency for any human to get elevated by himself. हाँ, अपने आप को बड़ाई करना, तारीफ करना, अपने को बड़ा करना मनुष्य की कमजोरी है। Paul is saying this. पौलुस ये बात कह रहे हैं। Lest I should be exalted above measure, God has put in him a thorn of flesh. तो मैं फूल ना जाऊं, मैं घमंड ना करूं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे शरीर में कांटा रखा। And a man of God of that level could not understand the purpose and the plan and the will of God concerning this thorn. So he cries unto him thrice, as we hear, as we read there, to remove of that thorn. सो इतना बड़ा ऊंचे स्तर के प्रभु का दास भी प्रभु का उद्देश्य क्या है ये कांटा रखने का समझ नहीं पाया, इसलिए 3 बार उसने प्रार्थना किया कि ये कांटा मेरे से दूर करो करके।
See verse 8. 8 पर देखें। And this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. 8 पद, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। God kept the thorn in his flesh परमेश्वर ने ये कांटा को उसके शरीर में रखा, with a purpose. एक उद्देश्य रखा। But Paul is saying, remove that thorn, तो पौलुस कहता है कांटा को हटा दो, not knowing what is the purpose of God. ये ना जानते हुए प्रभु का उस उद्देश्य क्या है। It is in that context the Lord said, my grace is sufficient for thee. तो ऐसी समय में, ऐसी पृष्ठभूमि में प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। It is a wonderful word. एक अद्भुत वचन है ये। I remember in 1989, 1989 में मुझे याद है, 19th of April, I was in Lalitpur when the train accident took place. 18 तारीख को ये दुर्घटना घटी। मैं अगले दिन 19 तारीख को वहां था। I was there by 11:30 or so at that accident site. जहां पर दुर्घटना हुआ उस जगह पर 11:30 बजे करीब मैं वहां था। I could not find my wife and children there. मैं अपनी पत्नी को, बच्चों को नहीं पाया वहां पर। I was taken to a hospital nearby, a municipal hospital in Lalitpur. ललितपुर में जो नजदीक में जो म्युनिसिपल हॉस्पिटल है वहां पर मुझे ले गए। To cut the story short, there I was told that my wife was called to glory, my children are wounded and they are in the hospital. सो वहां पर छोटा करने के लिए बता रहा हूँ, मेरे पत्नी जो है महिमा में बुलाई गई और मेरे बच्चे जो हॉस्पिटल में हैं। And Isaiah, who was there with them, who was escorting them, he is now the servant of God in Singapore. So he took me aside and he showed me the body. सो आइजिया जो आजकल सिंगापुर में प्रभु का दास है, सेवा कर रहे हैं, वो मुझे एक जगह ले गए और उनके मेरे पत्नी की देह को उन्होंने दिखाया। He was escorting them, my family, from Bangalore. क्योंकि मेरे परिवार के साथ वो बेंगलुरु से वो भी आ रहा था। So the accident took place. So now he took me there and he showed me the body. जब दुर्घटना वहां पर घटा और मुझे ले गया और मेरे पत्नी की देह को मुझे दिखाया। And I was stunned. मैं तो एकदम स्तंभ I रह was गया। so stunned I could not even cry. इतना मैं निशब्द हो गया, मैं बोल नहीं पाया, रो नहीं पाया। And my mind became blank. मेरा दिमाग काली हो गया। Only one thought was coming to my mind again and again. बार बार एक बात आ रहा है मेरे दिमाग में। We in our family were all serving the Lord. मैं और हमारे पूरे घराना प्रभु की सेवा कर रहे हैं। In all our families, हमारे सब परिवारों में every one of us, somehow or the other, we are in the ministry of the word of God. हमारे सब परिवारों में किसी न किसी तरीके से प्रभु की सेवकाई में है। Why did this happen? ये घटना क्यों घटी? Why did this happen? That was the question again and again coming in my mind. बार मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा था, ये ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? And I was in great torment of pain in my heart. अब मेरे हृदय में बहुत वेदना से भरा हुआ। And some hand touched my shoulder from behind. पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। And then he asked me, अब मेरे से पूछा, are you brother J.C. Rao from Delhi? आप क्या दिल्ली से भाई जेसी राव है? I turned to him and said, yes. मैंने उनके ओर फिरा, फिर मैंने कहा हाँ। He said, praise the Lord. मैंने कहा जय मसीह की। He is the brother-in-law of brother Samuel Nath, who was here with us. भाई सैमुअल नाथ का ब्रदर है वो, जो अभी हमारे साथ नहीं है। Brother Samuel Nath's brother-in-law was that person who said, who put his hand on my shoulder that day. भाई सैमुअल नाथ का जो ब्रदर-इन-लॉ था, जो मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला उस दिन। When I turned to him, जब मैं उनको ओर फिरा, because he was already told, because I communicated to them to Delhi and they have informed, because this man was in Lalitpur, because that is his in-laws place. So Samuel Nath phoned him up and told him that brother J.C. Rao in Delhi is there in the station because his wife was called to Gloria with the children wounded. So why don't you go and comfort them? So he came. क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिल्ली से मंडली को समाचार दिल्ली में पहुंचा दिया, इसलिए उन्होंने उनको मालूम हुआ भाई सैमुअल नाथ जो दिल्ली में थे, तो उन्होंने भी उनको बताया कि भाई जेसी राव अब रेलवे स्टेशन में वहां पर ललितपुर में हैं। सो करके उनके ब्रदर-इन-लॉ को बताया, इसलिए वो ब्रदर-इन-लॉ वहां पर आए थे। That is how he came. ऐसा वो आए थे। And he met me when I turned to him and I said, I am J.C. Rao. He said these words. जब मैंने कहा उनकी ओर फिरा, जेसी राव मैं हूं करके जब बताया, उन्होंने ये बात कहा। He said, brother, Lord said, my grace is sufficient for thee. भाई प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
Those are the comforting words I received in the station, in the hospital in Lalitpur. ललितपुर हॉस्पिटल में ये मुझे ये शांति देने वाला वचन मुझे मिला. So this grace is sufficient means, how to explain it? Sufficient means it is all powerful grace. सो कैसे हम इसको वर्णन कर सकते हैं? बहुतायत से उसका अनुग्रह मतलब सब प्रकार के प्रभु का आशीष ये बहुत हमारे साथ है. This grace is such a thing, it caters to the needs of every facet and aspect of our life. सो उसका अनुग्रह ऐसा अनुग्रह है हमारे जीवन के हर पहलू में जहां पर भी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करता है. If you want to further understand this one line, अगर इस एक पंक्ति को अगर आगे समझना चाहते हैं, each word we can break up and see what exactly it means. एक एक शब्द तोड़ के हम देखें इसका अर्थ वास्तव में क्या है. My grace is sufficient for thee. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है. In English there are 6 words. अंग्रेजी में 6 शब्द है. So I understand like this. मैं इस प्रकार से समझता हूँ. My, that word my refers to God. मेरा मतलब परमेश्वर, That means it is God's grace. यानी परमेश्वर का अनुग्रह. Because it is God's grace, it is great grace. क्योंकि ये प्रभु का अनुग्रह से बड़ा अनुग्रह है. And second word is दूसरा शब्द है my grace. My grace. Next word is grace. दूसरा शब्द है अनुग्रह. As we know from the very first word, it is God's grace. जैसे पहले से हम देखते हैं ये प्रभु का अनुग्रह है. नहीं, पहले शब्द से हाँ, पहले शब्द से हम समझते हैं this is God's grace. हाँ, पहला मेरा मतलब परमेश्वर का अनुग्रह है. Because it is God's grace, it is a great grace. क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह से बड़ा अनुग्रह है, महान अनुग्रह है. It is God's grace because it is a precious grace. क्योंकि प्रभु का अनुग्रह इसलिए बहुमूल अनुग्रह है. And thirdly, और तीसरा my grace is, next word is. हिंदी में तो आखिरी में है वो हाई करके, The present continuous, that word speaks of the present situation. यानी वर्तमान में हमारे लागू होता है. That means it's a present grace. वर्तमान में उसका अनुग्रह है. It is a great grace. ये बड़ा अनुग्रह है. It is a precious grace. ये अनमोल अनुग्रह है. And it is a present grace that is required at that point of time. जिस समय हमें जरूरत है उसी समय वर्तमान में है. And then fourth word is चौथा है sufficient. बहुत है, बहुत. That word sufficient speaks of powerful, full of power. बहुत मतलब सामर्थ से भरा हुआ है. The grace of God is sufficient to cater to the needs of all the people in every situation. परमेश्वर का अनुग्रह हर सब लोगों के लिए हर परिस्थिति में उनको जरूरत पूरा करने के लिए काफी है. That is why it is powerful grace. इसलिए सामर्थ्य अनुग्रह ही है. And then we find that word for. और इसके बाद हम देखते हैं For indicate to a particular person, to a particular situation. किसी व्यक्ति को किसी परिस्थिति के बारे में बताता है. So for speaks of particular grace. एक विशेष अनुग्रह के बारे में प्रभु पौलुस बता रहे हैं. For that particular situation, particular grace. उस विशेष परिस्थिति के लिए एक विशेष अनुग्रह. And then verse 6, the sixth word is for thee. For you. तेरे That means personal grace. व्यक्तिगत अनुग्रह. So you sum up all these things, अगर ये सारे बातों को निचोड़ you have a निकाले full message on this. इसके ऊपर पूरा बड़ा संदेश है. It is God's grace, that is why it is great grace. ये प्रभु का अनुग्रह है इसलिए बड़ा अनुग्रह है. And it is precious grace. ये अनमोल अनुग्रह है. It is present grace. वर्तमान में अनुग्रह है. And it is powerful grace. और इस सामर्थ्य अनुग्रह है. And it is particular grace. और विशेष अनुग्रह है. And it is a personal grace. और ये व्यक्तिगत अनुग्रह है. That is why seventhly it is an amazing grace. इसलिए आश्चर्यचकित अनुग्रह ही है. What a wonderful situation into which Lord has brought us, whereby we could enjoy this unlimited power of the grace of God. तो कितना बड़ा अद्भुत परिस्थिति में उनको ले आया जो असीमित परमेश्वर के सामर्थ्य अनुग्रह को हम अनुभव करते हैं. Right from the cradle to the cemetery, the man is involved in a pain management. ये जोले से लेकर सेमेट्री में जाने तक
दर्द मैनेजमेंट में इंसान चलता है। So many times you go to the hospitals, medical council, this and that, take so many things to maintain our health, food wise and medicine wise. And in all these things, His grace is sufficient for us. कई बार हमारे जीवन में हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई लेते हैं। ऐसा इस प्रकार से सब प्रकार से प्रभु का हर परिस्थिति में उसका अनुग्रह का अनुभव करते That is हैं। how this all powerful grace sustains us in every situation that we confront in our lives. That grace sustained me when a calamitous situation happened in my family. सो इस सामर्थ से भरा हुआ अनुग्रह हमें हर परिस्थिति में संभालता है। जब मेरे परिवार में, मेरे जीवन में इतना बड़ा भारी विपत्ति आया, प्रभु ने उस अनुग्रह से हमें संभाला। Paul understands this better. पौलुस जो है और उत्तम समझा इस बात को, That is why he gives an explanation of that grace. इसलिए उस अनुग्रह का वो विस्तार उसे बताता है। Now I am reading those two verses in 2 Corinthians chapter 12, 9 and 10. Look into your Bibles and see in your own languages. दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय 9 और 10 पद हम पढ़ते हैं। अपने अपने बाइबल में अपनी भाषा में देखिए। And I would like to underline that this should be our personal experience if you are a believer of the Lord. मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, और आप प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वासी है, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 9 पद, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गमन करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Therefore, or stand, therefore, I take pleasure in infirmities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. 10 पद, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। And this grace, I want to tell you, is linked with the faith that we have on Him. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अनुग्रह है, जो विश्वास हम प्रभु पर रखते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। That is why I said in the first mentioned the saving grace. इसलिए मैं By पहले His grace, through our faith, we are saved. उसके उद्धार देने का अनुग्रह है, उसके अनुग्रह से, हमारे विश्वास से हम उद्धार पाए। Grace of God and faith of man goes hand in hand. परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य का विश्वास, दोनों एक साथ चलते हैं। Lord Jesus Christ said प्रभु यीशु ने कहा in Mark's Gospel 11:22, मरकुस 11 और 22 में, have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो। Without having faith, without experiencing faith, you cannot experience and enjoy the grace of God. बिना परमेश्वर पर विश्वास करे आप परमेश्वर का अनुग्रह का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। No faith, no prayer. विश्वास नहीं तो प्रार्थना नहीं है, No faith, no praise. विश्वास नहीं तो स्तुति नहीं है, No faith, no fellowship. विश्वास नहीं तो संगति नहीं है, No faith, no power. विश्वास नहीं तो सामर्थ नहीं है, No faith, no obedience. विश्वास नहीं तो आज्ञाकारी जीवन नहीं है, No faith, no separation. विश्वास जीवन नहीं तो अलगाव जीवन नहीं है, And finally, no faith, no heaven. अगर विश्वास नहीं तो स्वर्ग भी नहीं है, No faith, no hope. अगर विश्वास नहीं तो आशा नहीं है। On each and everything, we can have an elaborate study. और हर एक शब्द पर बहुत विस्तार से हम वर्णन कर सकते हैं, अध्ययन So कर सकते faith is the foundation on which everything else builds up and makes us spiritually matured as we grow in the grace of the Lord. हैं। विश्वास जो है सब मूल है या नेव है, उसके ऊपर हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। 2 Peter, दूसरा पत्रस, many times it was brought to our notice in Delhi Assembly. दिल्ली कलीसिया में ये जो वचन है कई बार हमारे ध्यान में लाया गया। 2 Peter दूसरा पत्रस chapter 1, पहला अध्याय 5 to 9. I am reading, brother also will read in Hindi. Look into the scripture, please. 5 से 9 तक पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ध्यान से अपना वचन में देखेंगे। We are seeing grace of God is linked with faith that we have in God. If we don't have faith, we cannot enjoy and experience and express that grace of God.
तो हमने देखा परमेश्वर का जो देख रहे हैं। हमारा विश्वास जो प्रभु पर है उससे जुड़े हुए हैं, सो बिना विश्वास से अनुग्रह का अनुभव नहीं कर पाएंगे। And beside this, giving all diligence, and to your faith, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and brotherly kindness to charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. दूसरा पत्रस और पहला अध्याय 5 से 9 तक। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। Read again that portion that is self-explanatory. क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। My strength is made perfect in weakness. मेरा कमजोरी 12:9, 2 Corinthians. दूसरा कोरिन्थी 12:9 में लिखता है कि क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। And 10th verse last line. 10 में आखिरी में, When I am weak, then I am strong. क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। So we need to enjoy this grace in our lives, otherwise we cannot be sustained in this wicked and perverse and workaday world. So हमारे जीवन में इस अनुग्रह का अनुभव करने की हमें बहुत जरूरत है, नहीं तो इस दुष्ट पाप भरे संसार में हम जीना मुश्किल है। Yeah, grace of God sustains us. परमेश्वर का अनुग्रह हमें जीवित रखता, संभालता है। It is a saving grace. ये जो उद्धार देने वाला अनुग्रह है, and it is sustaining grace. हमें जीवित रखने वाला, संभालने वाला अनुग्रह है। And there is so much to see. We will see tomorrow, God willing, on Sunday. बहुत कुछ हम देख सकते हैं, प्रभु ने चाहे तो इतवार को देखेंगे। But this grace of God that we enjoy is linked with the faith that we have in God. लेकिन जो प्रभु का अनुग्रह जो अनुभव करते हैं, जो विश्वास हम प्रभु पर रखते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। It is saving grace because when we come to Him, we are saved by grace through faith. So यह उद्धार देने वाला अनुग्रह है। अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह से हमारे विश्वास से हम उद्धार पाएं। Yeah, that is very, very important, basic truth. ये मूल सच्चाई है। ये So there we find faith and grace operation. यहाँ पर हम देखते हैं अनुग्रह और विश्वास दोनों काम कर रहे हैं। Same thing continues all through our life in every facet of the faith, the grace of God. तो हमारे जीवन के हर पहलू में प्रभु का अनुग्रह, ये विश्वास दोनों काम करेंगे। We will see much more on Sunday, God willing. प्रभु ने चाहे तो आने वाले इतवार को और अधिक देखेंगे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। I request Brother Subbarao to close the meeting with a word of prayer. प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर की पिताजी, धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं आपके दास के द्वारा, आपके स्वर्ग के सिंहासन से जो जीवित वचन हमारे प्रभु सामने लाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार है प्रभु। दूसरा कोरिन्थी प्रभु 12:9 और 10 पद, जो पौलुस का जो प्रभु जी अद्भुत अनुभव था प्रभु जी, प्रभु उसने जो कांटा उसके जीवन में था, 3 बार उसने प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु आपने कहा कांटा उसके जीवन में रहना जरूरी है प्रभु। इसलिए बाद में वो समझा, इसलिए उसने कहा जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। सचमुच प्रभु आपका अनुग्रह के बारे में आपके दास के द्वारा वर्णन किया गया प्रभु। सेविंग ग्रेस जो हमें उद्धार देने वाला ये अनुग्रह है प्रभु जी। सचमुच आपका अनुग्रह हमारे विश्वास से एफएसी 2:8 के अनुसार हम लोग इस उद्धार के अनुभव में लाए, हृदय से आभार प्रभु जी। हमने देखा प्रभु जी ये अनुग्रह जो हमारा विश्वास जो आप प्रभु जी जो आपके ऊपर रखते हैं वो दोनों जुड़े हुए हैं प्रभु, तभी हम इस संसार की यात्रा में हम जीवित रह सकते हैं प्रभु। इसलिए हमने देखा सस्टेनिंग ग्रेस
प्रभु आपका संभालने वाला अनुग्रह, जीवित रखने वाला अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस अनुग्रह को हमने देखा प्रभु, ये बड़ा अनुग्रह है प्रभु, महान अनुग्रह, ये अनमोल अनुग्रह है प्रभु, ये वर्तमान में ये अनुग्रह है प्रभु जी हमारे लिए, और सचमुच प्रभु जी विशेष अनुग्रह है प्रभु, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए आश्चर्यचकित अनुग्रह है प्रभु। ऐसा अनुग्रह के अधीनता में हम लोग को लाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। एक समय हम कहा थे प्रभु जी, हम पाप में धल में थे, आपकी महान अनुग्रह से ही हम लोगों की महान उद्धार दिया, इसलिए बड़े आभारी धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए आपके दास को आशीष दे, आने वाले संडे को और अधिकार से आपके दास को इस वचन के ऊपर जो हमारे साथ बात करे, आपके दास को अभिषेक करे प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जो भी प्रभु इंपॉर्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, हमारे भाई मेहताब का बेटा आकाश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप संपूर्ण से उनको आप प्रभु जी संभाले प्रभु जी, आप आशीष दे प्रभु, संपूर्ण चंगाई दे। कल परसों जब वो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, आप सहायता करें, उनकी नौकरी में भी सहायता करें प्रभु। इसी प्रकार से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कविता के लिए, अशोक सिंह के लिए, उनको भी नौकरी नहीं है प्रभु जी, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन से जो नौकरी उन्होंने खो दिया प्रभु, आने वाले दिनों में जल्दी से उनको नौकरी मिल सके। ऐसा जो हमें नहीं मालूम कितने लोग ऐसे प्रभु दुखों से गुजर रहे प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है। सच में जैसा भी हमने देखा, आपका अनुग्रह उनके लिए बहुतायत से हो, आप बहुतायत अनुग्रह दिखाएं और जल्दी से उनको प्रभु कुछ ना कुछ नौकरी में उनको मिलने में सहायता करें। जो कोरोना से प्रभु जी पीड़ित है, ऐसे हमारे कई प्रिय लोग हैं प्रभु, उन सबको भाई नेम प्रभु हर एक को आप उनके साथ रहे, आप आशीष दे प्रभु, संपूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमारे भाई जयराज के छोटा भाई के लिए, जो शांति राजू है, हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, आप ही प्रभु आपके बच्चे को संपूर्ण चंगाई दे प्रभु, परिवार को आप संभाले प्रभु, आप उनको हिम्मत दे ही आप दे समय प्रभु। इसी प्रकार से हम धन्यवाद करते हैं भाई संपत कुमार को राजमंड्री में आपने प्रभु चंगाई दिया, घर में क्वारंटाइन में आप उनके साथ रहें। और इसी प्रकार प्रार्थना किसी के ग्रैंड मदर के लिए उनको भी संपूर्ण चंगाई दे। और एक और लड़की है प्रेजी रोजलिन, राजमंड्री में उनका रिश्तेदार में 10 साल की लड़की, आप उनको भी संपूर्ण से चंगाई दे प्रभु। इसी प्रकार से हम प्रार्थना जितने भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, फ्रंट लाइन में प्रभु काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आप उनके साथ रहे प्रभु जी। और हमारे भाई प्रभु लक्ष्मण स्वामी को भी आपने चंगाई दिया, उनकी फादर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण से उनको भी चंगाई दे प्रभु जी। प्रार्थना धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो 10th रिजल्ट आया प्रभु बोर्ड एग्जाम का, जो अच्छे रिजल्ट आपके बच्चों को आपने दिया प्रभु, बड़े आभारी हैं प्रभु। जॉन के लिए धन्यवाद करते हैं, स्टीव के लिए और कालिब के लिए धन्यवाद करते हैं, जोना के लिए धन्यवाद करते हैं, और मालिनी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और क्रिस्टीना के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स उनको दिया, सफलता दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके पारिवारिक प्रार्थना, परीक्षा की प्रार्थना सुना आपने, आदर दिया, इसे उद्देश्य आभारी हैं। और उनके हायर क्लासेस में जब जाते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी, भविष्य में भी उनके पढ़ाई में प्रभु आप स्वयं सहायता करें। इसी प्रकार से प्रभु जी, और जो दुखों से गुजर रहे प्रभु, समस्या से गुजर रहे, हर एक दुख को समस्या को आप हल करें। संडे स्कूल टीचर्स के लिए धन्यवाद करते हैं, संडे स्कूल बच्चों को धन्यवाद करते हैं, आप उनको भी आप आशीष दे। आने वाले प्रभु जी नेक्स्ट वीक में प्रभु भाई प्रसाद राव जो मिनिस्ट्री करेंगे हैदराबाद से प्रभु जी, ट्यूजडे 21 तारीख को, 23 तारीख को और 26 तारीख को, आपके दास को भी अभिषेक करके आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं भाई पेद्दकोंडा के लिए, जो भी शरीर में कमजोरी है या प्रभु तकलीफ है, बॉडी पेन है, आप उनको शुक्र चंगाई दे। सिस्टर सविता के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बुखार है प्रभु, संपूर्ण से आप उनको भी शुक्र चंगाई दे। और इस प्रकार से प्रभु आज धन्यवाद करते हैं जोड़ा के लिए भी, जो कल उनका बर्थडे था प्रभु, आप उनको बहुत आशीष दे प्रभु। आज भी उसे सुनाने में सहायता किया, आने वाले दिनों में औरत का उनको आशीष दे। और इसी प्रकार से जौहान के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जो उसे सुनाए प्रभु, उनको भी आप आशीष दे प्रभु। प्रार्थना धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हैना अदिस्सा के लिए और जॉय जसिंता के लिए, उनको जो गीत गाए उन्होंने प्रभु, हम पति के उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बच्चों को आप आशीष दे, जो वरदान आपने संडे स्कूल बच्चों को आपने दिया, सब बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में और अधिकारी से आप उन सबको भी आप आशीष दे प्रभु जी, जो ऐसी आत्मिक वातावरण दिया माता पिता, उन सबको भी आप आशीष दे प्रभु। इस प्रकार से प्रभु जो दिल्ली में वसंतकुंज, गुड़गांव, नोएडा, संगम, सराय में जो आपके बच्चे पाए जाते हैं, सबको आप आशीष दे। आज सराय का भी प्रभु जी मंडली का जो स्थापना हो के जो 20वां प्रभु जी एनिवर्सरी है प्रभु जी, आप उनके साथ रहे भाई, वहाँ पर जो सेवा में है उन सबको भी आप आशीष दे, और आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। और सिस्टर विजय को आपने अपने पास बुलाया प्रभु जी मद्रास में, उनके परिवार सदस्यों को आप ही प्रभु जी संतावना दे प्रभु, अनुग्रह दे, तो सहायता करें। अब तक आपने सहायता किया, बाकी समय को भी आप आशीष दे। धन्यवाद साहब प्रार्थना आते हैं शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम में, सुने ग्रहण करें, आमीन। Kindly note the announcement. कृपया सूचना ध्यान से सुनिए।
Sunday school ministry will continue as we are announced already. जैसा पहले से हमने बताया, संडे स्कूल सेवकाई लगातार चलता रहेगा। And Sunday we gather for a time of worship at 10 o'clock. हम इतवार को आने वाले संडे को 10 बजे आराधना के लिए हम इकट्ठा होंगे। Make sure to maintain the timings. आप निश्चय कर लीजिए, समय को पालन करें। Before this online ministry started, we used to gather in our places where we have been gathering. जब ऑनलाइन मिनिस्ट्री से पहले शुरू से होने से पहले हम लोग अपना अपनी जगह में पर इकट्ठा होते थे। There was a travel involved to travel to that particular place. वहाँ पर हमें यात्रा करना होता था उस जगह पहुँचने के लिए। Now we don't have to travel at all. हम तो बिल्कुल अब यात्रा करने की जरूरत ही नहीं है। You are at home. आप घर पे हैं। It is such a convenient situation. Even then, I think I noticed some of the people are not available at 10 o'clock. Or even on the other day, 7:30 prayer meeting, 7:30 Bible study. Before that time, they are not available. मैं ये देख रहा हूँ कि 10 बजे आराधना के लिए संडे के दिन, मंगलवार और बृहस्पतिवार जो 7:30 बजे हमारा सभा होता है, उस समय तक लोग जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहे। We humbly request you in the name of the Lord Jesus Christ, make yourself available and be there before time, not after the time. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे नम्र निवेदन है, आप समय से पहले ही, ना कि बाद में, समय से पहले ही आप वहां बैठिए, उपलब्ध रहिए। Another important announcement, kind of make a note of it. एक और मुख्य इम्पोर्टेंट सूचना है, ध्यान से सुनिए। We are praying to start chain prayer in our midst. हमारे बीच में चेन प्रेयर शुरू करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। All our 5 assemblies. हमारे जितने भी जो 5 मंडली हैं। So kindly indicate the time that you are available during the day or night, 24 hours time. At what time you are available? One hour per family. So 24 घंटे में आप कौन से समय उपलब्ध रहेंगे? हर एक परिवार के लिए 1 घंटा प्रार्थना में बिताना है। Kindly indicate that to Brother Vijay Kumar so that he will make out a list according to the commitments made by the people. भाई विजय कुमार को आप अपना सूचना दे दीजिए, उसके अनुसार एक लिस्ट बनाएंगे उस समय का हिसाब से। Suppose I am available between 1 o'clock and 12 o'clock, 1 o'clock and 2 o'clock. I should indicate to him 1 and 2 I am available. मान लीजिए midnight. मान लो मैं आधी रात को 1 बजे से 2 बजे तक मैं उपलब्ध हूँ, तो ऐसा समय बताना है कि मैं उस समय पर उपलब्ध हूँ। And if I am available between 4 and 5 early morning, I should indicate to him 4 and 5 also I am available. ये अगर मान लो सुबह 4 से 5 बजे तक मैं उपलब्ध रहता हूँ, तो मैं बताऊं कि मैं उस समय में तैयार हूँ। So likewise, at your convenience, no force, at your convenience, whichever time that you can spare, kindly indicate to Brother Vijay Kumar so that we will draw out a chart at what time they are available. Then we will circulate that to every one of us. That would be a reminder, and keep up your commitments and spend time in prayer. तो कोई दबाव नहीं है, सो आपके लिए जैसा अनुकूल है वो आप समय जो भाई विजय कुमार को बताइए, ताकि हम उसको एक चार्ट बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे उस समय। The time that we are passing through is not an ordinary thing. जिस समय से हम गुजर रहे हैं ये सामान्य बात नहीं है। What has happened to us because of this coronavirus is not an ordinary thing. जो कोरोना वायरस के कारण जो कुछ हमारे साथ हो रहे हैं ये सामान्य बात नहीं है। It is a very dangerous virus. ये बहुत खतरनाक वायरस है। Again and again we hear from the doctors, you don't have to get panic and all that. That is very true. But nevertheless, it is dangerous. Unless we are careful, this will strike us at any time, anywhere. So, जबकि डॉक्टर्स बार-बार हमें बताते हैं कोई खतरा नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये कभी भी किसी को भी आ सकता है, इसलिए हमें सावधानी से इसके लिए प्रार्थना करना है। So we have to pray for the preservation of our children, our families, according to His will. प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु हमारे परिवारों को, बच्चों को संभाले, इसलिए हम उसके लिए हम प्रार्थना करना है। So spare some time so that we could pray for this. At the same time, pray for the ministry that is being accomplished in our midst. तो इसके लिए चेन प्रेयर की प्रार्थना करें, उसी समय जो हमारे सेवकाई हमारे बीच में प्रभु की सेवकाई हो रही है उसके लिए भी प्रार्थना करें। As it is an online ministry, क्योंकि ऑनलाइन सेवा है, you can also tell your neighbors, your friends, closest friends or colleagues, the timing that is the ministry is going on, so that they have privilege to listen to the word of God. जो आपके आस पड़ोस में आपका मित्र है या पड़ोसी है, उनको भी ऑनलाइन सेवा है, इसलिए
वो उनको भी आप बता सकते हैं ताकि वो लोग भी देख सके, सुन सके वचन को। Don't force this upon them, but you tell them if it is possible, if this time is available to you, kindly listen to it. You will be benefited, you will be blessed. Like that, you communicate to them. उनको दबाव नहीं करना है, अगर ये आप सुनेंगे तो आप आशीष पाएंगे, आपके लाभ रहेगा, ऐसा करके आज समझाइए उनको। In their own home, they can listen to it. वो अपने अपने घर में वो देख सकते हैं। They may be seeing so many other programs. क्योंकि हो सकते हैं वो लोग कई दूसरे प्रोग्राम देखते But हैं। tell them God's word is being ministered. उनको बताइए प्रभु की वचन की सिखाई हो रहे हैं। So kindly do this also. This will be a great blessing for you. ये आप ऐसा सेवा करने से आपके लिए बड़ा आशीष है। कृपया आप So ऐसा करें। we request you to give your commitment so that from 1st of August onwards, we can continue this chain prayer. So आपसे निवेदन है, चेन प्रेयर के लिए आप अपना नाम दीजिए ताकि अपना समय बताइए, 1 अगस्त से हम लोग ऐसा कर सके। Many are willing to give the timings even beyond India to join us in chain prayer. भाई कई लोग जो है भारत से बाहर भी, विदेशों में भी चेन प्रेयर में शामिल होने के लिए इच्छुक है, नाम देने के लिए। So it will be beneficial for all of us mutually, so that we could all pray with oneness of mind and singleness of heart, so that our prayers could be answered according to the good pleasure of His will. आपस में ऐसा प्रार्थना करना और हमारे एक चित्त एक मन होकर प्रार्थना करने से हम सब के लिए लाभदायक होगा, आशीष का कारण होगा। So kindly make a note, kindly help us to help you. So ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिए। So हमारे आपकी सहायता करने के लिए कृपया आप हमारा सहायता करें। Just phone up and tell Vijay Kumar what timing that you are available. That's all. Then we will do the rest. फोन करके आप भाई विजय कुमार को बताइए कौन सा समय में आप उपलब्ध है, बाकी काम हम करेंगे। We will compile a chart and circulate among all of you. सबका नाम टाइम जो है चार्ट बनाएंगे और सबको सर्कुलेट करेंगे। And Sister Vijay, Dr. Vijay, she is the daughter-in-law of Brother K. Philip in Madras. Her husband's name is Sylvester, Dr. Sylvester. She was down with cancer for a long time. I saw her many times when I used to go to Madras, and they are very much devoted family. And they had one son. He is also a very good believer, Shalom, Dr. Shalom. He is a doctor in Vellore Hospital also. And that sister was called to glory on 13th. तो भाई के फिलिप के ये बहू है, यानी सिल्वेस्टर की पत्नी है, डॉक्टर विजय, जो प्रभु के कई बार मैंने उनको देखा जब देवसभा गया, चेन्नई गया। सो बहुत वो सेवा करती थी और वो डॉक्टर थी और कैंसर से काफी समय से वो पीड़ित थी और वो अपने प्रभु पास चले गए। उनका एक बेटा भी है शालोम, जो वेलूर में वो डॉक्टर है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। But for the coronavirus, I would have gone for the time of the burial. हाँ, कोरोना वायरस नहीं होता, मैं तो वहाँ पर बरियल में भी जाता। So we have to only pray for the comfort of that family. तो केवल हम परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना She is a very pious, very God-fearing sister. वो बहुत भक्ति रखने वाले बहन है। God may bless her husband Sylvester and son Shalom and his wife and the child. उनके पति सिल्वेस्टर को, उनका बेटा शालोम को प्रभु सहायता करे, आशीष दे। Now shall we pray? हम प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेम ईश्वर के पिताजी, help us to do Thy will. प्रभु जी आपकी इच्छा पूरा करने में हमारी सहायता करें। Thank Thee for Thy grace which is sufficient unto us. हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए काफी है। Help us that we may fulfill the conditions thereof, whereby we may enjoy and express this grace through our life. जो भी शर्त प्रभु आपने रखा, प्रभु उस शर्तों को पूरा कर सके ताकि हमारे जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह का हम अनुभव करें। Thank Thee for all those who are hearing Thy word through the Zoom and through YouTube in India and also outside India. प्रभु जितने भी जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा भारत में और विदेशों में सुन रहे हैं, उन सबके लिए धन्यवाद करते हैं। So Lord, watch over us all. प्रभु उन सबको देख रेख करें। And help us also, as we have announced, give a commitment for chain prayer. तो प्रभु जैसा अभी हमने बताया, चेन प्रेयर के लिए प्रभु आपके लोग आगे आने में सहायता करें। So that we could be praying 24 hours without break wherever we are. जहाँ पर हम रहे बिना ब्रेक के 24 घंटे हम लगातार प्रार्थना करते रहे। Give us good amount of rest this night if it is in Thy will. Wake us up tomorrow so that we may be able to serve Thee acceptably. आज रात को प्रभु हमें अच्छा विश्राम दे, अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु हमें सुबह जगाइए ताकि आपके ग्रहण योग्य सेवा करें। Pray with thanksgiving in the precious and sweet name of our Lord and our Savior Jesus Christ. धन्यवाद साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और बहुमूल्य नाम से। Amen. आमीन।
Now may the grace of our Lord and our Savior Jesus Christ, love of God, communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. अनुग्रही से बलवंत बने युद्ध हमारे सामने है। अनुग्रही से बलवंत बने युद्ध हमारे सामने है। और प्रभु में ही हम सबों को, और प्रभु में ही हम सबों को अंत तक बढ़ते जाना है। अंत तक बढ़ते जाना है। प्रभु तेरा अनुग्रह है, बड़े धन से ये हुआ है। हे प्रभु तेरा अनुग्रह है, बड़े धन से ये हुआ है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Thank you. Good news you have given me. We are praying for him. Thank you, brother, for your prayer. Thank you so much, brother. I will speak to him later when he is all right. अभी तो 2-3 दिन और लगेंगे बोल रहे थे। Let him be in the hospital. Yes, brother. When he comes home, when he is all right, I would like to spend some time on phone. Okay, brother. Okay, sure, brother. Sure. Okay, I want to encourage him Yes. and help him for a job also. I'm praying. Thank you, brother. Thank you so much for your prayer, brother. Thank you, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. जय मसीह की। Jai Masih ki. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Sunil. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Raju. And Swami, Lakshman Swami. Jai Masihi, brother. Harish Chand. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Lord, uncle. जय मसीह की सबको अंकल जय मसीह की God bless you all. जय मसीह की जय मसीह की Giripata, praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. అదే తెలుగు పాట మళ్ళా వినవా రాజు? సరే ఆ? విన్నాను అంకుల్ అది మళ్ళా విను బాగా వస్తుంది. సరే బాగుంది, కరెక్ట్ గా ఉంది. కొద్దిగా పల్లవిలో సెకండ్ బిట్ లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం. बड़े धन से ये हुआ है बड़े धन से हुआ है बड़े धन से ये हुआ है. My lungs are weak. You have to bring that. నీకు వస్తుంది బాగా నేర్చుకో ఇంకా బాగా. సరే Thank you. Praise the Lord. God be with you all. प्रेज द Praise the Lord. जय मसीह की Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की जय मसीह की. Where is the other boy? तो आपको भाई दिख रहा है. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. बोलो भाई जय मसीह Praise the की Lord. Praise the Lord. जय मसीह की सबको जय मसीह की भाई जी जय मसीह की जय मसीह की भाई जय मसीह की Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की Praise the Lord. Take care. पाल भाई जय मसीह की Keep cleaning your hands. जयनंद भाई जी जय मसीह की What is this boy doing? आपका लड़के क्या कर रहे हैं? जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आपका लड़का क्या कर रहे हैं? अंकल मैंने से पूछ रहे Your sons, what are they doing? Studying. younger one is doing BSc animation, so his college will start from next month online, and his elder one, so he is looking for some job opportunity. What has he done? I have done graduation in BBA.
Then right now, जय you are the मसीह eldest की one, huh? You are the eldest one. yeah. उधर नहीं दिखाएगा, इधर दिखाएगा। जय भाई जय मसीह की जय Okay. मसीह की, जय Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, brother, praise the Lord. पहुंच गया सब ठीक से Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. भाई सरकार जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की। Praise the Lord. Vijay. जय मसीह। जय मसीह। है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय मसीह की। Praise the Lord. Very good singing. Very good. जय मसीह की, जय मसीह की। బాగా ఎత్తున్నాడు, బాగా నేర్చుకో, ఎంతో బాగుంది. हाँ भाई जय भाई मसीह जय की। मसीह की जय मसीह की। जय बंधु। अजय भाई जय मसीह। जय मसीह की। Praise the Lord. हो रही मैं आप इंट्रोड्यूस करो सिस्टर, कौन है आप? सिस्टर शीला, शीला डेविड जो है उनकी वाइफ, डेविड जो अमेरिका में उनकी वाइफ, डेविड भाई जो है उनकी वाइफ शीला। हाँ हमारे चर्च शीला हैं, ये डेविड भाई जो अमेरिका में है, इनके भवन, इनके घर में भवन बना हुआ है। और हस्बैंड नेम क्या है? शीला, शीला हस्बैंड का नाम क्या है? डेविड पपर, डेविड पपर है ना? यस शीला लेस्ली, शीला लेस्ली। यू आर फ्रॉम फरीदाबाद और संगम विहार? संगम विहार। हाँ बोलो ना भाई, संगम विहार के हैं। संगम विहार से, Praise the संगम Lord. विहार। जय मसीह की। God with you. Praise the Lord. Congratulations. Congratulations. Well done. Well done. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. चैतन्य, praise the Lord. Caleb, बहुत अच्छा किया। अंकल ने इंट्रोड्यूस कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord, uncle. Praise the Lord. तो चैतन्य, अंकल why we are not able to जय communicate to them? They are not able to communicate to us. No, they are not speaking, uncle. They can. Hey, you explain to them now, yeah. They should know what they should do. Otherwise, I am saying praise the Lord. They are saying nothing is happening. सब थोड़ा लोग explain करो उनको क्या करना है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके वीडियो खोल के आप सब लोग उनसे बातचीत कर सकते हैं। Please unmute yourself and turn on your video and interact with the other fellow believers. Praise the Lord, जय brother. मसीह की, जय मसीह की। Praise the Lord. ये दर्द है कि personal is very I don't know. Praise the Lord. Praise the Lord. Johan, praise the Lord. Are you listening to me? Lord. Isaac, praise the Lord. 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 जय मसीह की। दोबारा भाई जय मसीह की। जय मसीह भाई, जय मसीह। जय मसीह की brother. जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। राजू भाई जय मसीह की। विजयानंद भाई जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। विजयानंद आना जय मसीह की। भाई जय मसीह की। जय मसीह भाई। भाई जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। Praise the Lord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, हरे बाप। Congregation है, congregation। आज सबको जय आज जय मसीह की प्रार्थना कीजिएगा। हेलो हेलो
हाँ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कीजिएगा भाई स्टीफन सिस्टर का ना आज विजयवाड़ा में लड़की जन्म लिया। प्रार्थना कीजिएगा उसके लिए। कौन कौन? हमारा सराय में हमारा भाई स्टीफन और सिस्टर एस्टर है ना। हाँ हाँ। तो उनका आज विजयवाड़ा में लड़का जन्म लिया है आज शाम मीटिंग के समय में। They are not here in the फरीदाबाद now. जी जी। वो फरीदाबाद में नहीं है? नहीं विजयवाड़ा में गए। फिर आएगा वो इधर? हाँ अभी आएंगे थोड़ी देर के बाद, अभी आने वाले हैं। ओके ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Emmanuel, Ebenezer. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. God bless you. Sunil, praise the Lord. Sunil. How are you? Praise Rishi. Rishi బాగుందా? సునీల్ భాయ్ జయ మసీకి. బాగానే ఉందండి. అదే అంటే I want a big screen, you know, where everybody comes. Praise the Lord, Kavita, praise the Lord. अंकल मेरी जॉब लग गई। किधर? अंकल जहाँ मैं कर रही थी ऑनलाइन में, उन्होंने दोबारा मुझे बोल दिया कि आप कंटिन्यू कर लीजिए। फिर कैसे करोगे काम? पिक एंड ड्रॉप है गाड़ी। पिक एंड ड्रॉप मतलब? मतलब गाड़ी मुझे पिक भी कर रही है और ड्रॉप भी कर रही है। क्या काम करते हैं आप? मेरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन में क्या करते हैं? अमेज़न यस, कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर आती है तेरे को? जी आता है। वही यार, हमको तो पता ही। हाँ, वेरी गुड, ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वी हैव बीन प्रेइंग फॉर यू। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। यस प्रेज द लॉर्ड अंकल। कीप अप द गुड वर्क। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जॉन स्टीव, జేమసికి జాన్ స్టీవ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఆమె విజయ్, సిస్టర్ విజయ్ ఎంతో భక్తి పర్రాలండి ఆమె. డాక్టర్ సెల్విస్టర్స్ వైఫ్ ఎంతో భక్తి పర్రాలు, ఎంతో వినయ విధేయతలు కలిగిన ఆమె కొడుకు షాలోమ్ ఈజ్ ఎండి ఇన్ క్రిస్టియన్ మెడికల్ స్కూల్ హాస్పిటల్ నెల్లూరు. యా, he stayed with us a few days long time ago. अच्छा। प्रेज द लॉर्ड अनिल, हाउ आर यू? अनिल सब ठीक है? चेन प्रेयर में మీరు తప్పకుండా ఇవ్వండి. చైన్ ప్రేయర్ లో విజయ్ ఫోన్ చేసి చెప్పండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. प्रेज लॉर्ड। ओके भाई, प्रेज द लॉर्ड। तेरे लिए ना जीऊंगा मैं अब अपने लिए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। ब्रिटिश, हाउ आर यू? Fine, uncle. How is Abraham and his family? Uncle, బానే ఉన్నారు uncle. Okay, Abraham. Fine uncle, they are fine uncle. ఇక్కడ బాగుంది, అనుకూలంగా ఉందా? బానే ఉంది uncle. ఆడ ఊర్లో ఎట్టున్నారు వాళ్ళు బాగలేని వాళ్ళు? అంకుల్ ఒకళ్ళు అయితే అది ఇంటికి వచ్చారు అంకుల్, ఇంకోళ్ళు అదే నానమ్మ గారికి అయితే కొంచెం పర్లేదు అంకుల్, ఇప్పుడు కొంచెం ఫుడ్ తీసుకోగలుగుతున్నారంట అంకుల్. పర్లేదు అంకుల్, కొంచెం ఇంకా అంటే కొంచెం వీక్నెస్ ఉంది అంకుల్ ఇంకా. అంకుల్ హౌ ఇస్ व्हाट इज दैट? चैतन्य, विजय कुमार, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या पूछ रहे थे? अंकल हाउ इज नेथन एंड रेचल? They are all right by God's grace. We don't hardly see them. I will bring them now. They have gone up. Okay. Sunday I will make them stand here in front of you. Okay. Yeah. आप लोग किधर रहते हैं? संगम विहार? One hum. हाँ. No, we live in Greater Noida, uncle. ग्रेटर नोएडा में चले गए आप? जी 1 year, almost one plus year हो गया. हाँ. Good. So just pray for so. हाँ. Sunday get connected. Sunday also. Yeah, always be okay. और prayer चेन प्रेयर के लिए टाइम दीजिए. Praise the Lord. Good night. थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।